ठीक है, then we shall start. Good evening, everyone. Very happy Dussehra to all of you. Dussehra, we all celebrate the triumph of rightness over wrongness or over your weakness. So today I hope that today's session will help you in overcoming the weaknesses on your essay writing. So let's start then. This shall be our session coverage today. First, we shall be discussing about the UPSC directives because it is very important for you to understand the rules of the game. When you enter a game, you need to understand what are the rules by which you should avoid and to play the game. Then, of course, we will be looking at introductory, body, and conclusion, the three important pillars, or I should say, structural constituent of your essay writing. And after that, we shall be looking at the common mistakes that the aspirants commit. So this directive is very much important that you need to keep yourself closely to the subject of the essay. Now this closely, you need to understand is not exactness. Okay? It is very important. If you see this, this is a reply that a UPSC gave to the Honorable MP Shashi Tharoor in respect to a essay on 2016. It says that the different acceptable interpretation will be considered. Acceptable interpretation will be considered valid during the evaluation of the essay to protect the candidate's interest. So there is nothing called exact interpretation. This is something that you should keep in your mind. It will be very much helpful for you when you attempt your philosophical essays. ठीक है, but the key is acceptable interpretation. ठीक है, एकदम बेवार्ड नहीं हो जाना है, इंटरप्रेट करने में वाइल्ड नहीं हो जाना है. So you need to keep closely to the subject of the office, subject of the essay. Then you need to arrange your ideas in orderly fashion. Now this part is very much important. Orderly fashion. Orderly fashion means that your ideas should flow from one to other. ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वेटर कम्स टू यू एंड ही गिव्स यू डेजर्ट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टर और मेन कोर्स जो भी आप पहले खाते हैं, then it will be a bit odd for you, right? Because it is violating the orderly fashion. The same goes in your essay. Your ideas should flow naturally from one to other. There should be a continuity and they should be arranged in an orderly fashion. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है जो आपको समझना है. And then you need to write concisely and you need to have effective and exact expression. Meaning you cannot take long. You cannot write paragraphs after paragraphs just to convey one single idea. ठीक है, आपको अपने आइडियाज को बहुत कम शब्दों में कहने की आदत होनी चाहिए. And that is why it is meant by concisely. You need to be concise. तो I think rules of the game pretty much clear है. Closely रखना है. Acceptable interpretations accept किए जाएंगे. You should arrange your ideas in orderly fashion. Continuity and flow is very very much necessary in essay. ध्यान देना है और प्रिसाइसली लिखना है, बरबोस नहीं लिखना है, प्रिसाइसली लिखना है. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं, सेम आइडियाज को डिफरेंट टाइप से कहते रहेंगे, ये नहीं करना. यू नीड टू बी कंसाइज. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चूजिंग द टॉपिक. कौन सा टॉपिक चूज करें? तो आई वुड सजेस्ट first and foremost criteria would be familiarity with the topic, because until and unless you are familiar with the topic, you will not be able to have natural flow of ideas. आपके पास ideas ही नहीं आएंगे तो आप dimensions कैसे generate करोगे? These two aspects are very much important. ठीक है, आप कोई भी ऐसे टॉपिक चूज करें, आपके पास 4 ऐसे टॉपिक होंगे एक पर्टिकुलर सेक्शंस में. just ask yourself in which particular essay topic you are more comfortable, you fit naturally to that idea of the essay topic, so that you can have a flow of ideas and you can generate multiple dimensions. These are very important directives, dimensions and natural flow of ideas. Third and most important aspect is some of you decide the essays based on कि थोड़ा unconventional चूज करेंगे क्योंकि इस पे तो सभी को ही लिख रहे हैं. अरे भाई, आपको तोप नहीं बनना है. आप तोप बनने के चक्कर में it will backfire, because what happens is कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक आप चूज कर लें, अगर आप जस्टिस उसके संग नहीं करेंगे, ठीक है, if you do not give multiple dimensions to ऐसे topic, if you do not have the natural flow of ideas, it will be very very difficult for you to get marks. ठीक है, तो अनकन्वेंशनल बनने के चक्कर में गड़बड़ नहीं करना है. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें.
philosophical essays क्या चूज करना है. So as I mentioned in the previous slide, that in the philosophical essays you should attempt that philosophical essay topic in which you can give multiple interpretation, because when you are able to give multiple interpretation, it will help you in giving different I should say it will help you in exploring the essay topic in a multiple context, and that gives diversity to your essay topic. ठीक है. For example, these are the essay topics from last year only. So if I just ask you that which of the topic you will choose from here, there are ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. And the second topic is simplicity is the ultimate sophistication. So just give it a thought. Just give it a thought. अगर मैं आपको ये दो टॉपिक देता हूँ and if I just ask you कि इनमें से आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, तो आप कौन सा करेंगे? Just give it a thought. Then we'll discuss. Just 1 second. Okay. So in my personal opinion, of course, you might be more comfortable in the with the other essay which I will be talking about. I think you should be choosing this particular essay topic because here the idea is, the essay says that the ships do not sink because of the water around them. There is this ship, it will not sink because there is a water around it. It will sink because of the water that gets into it. Ultimately, it highlights, the essay topic highlights that a particular thing will sink only when it allows water to go inside. Now, my dear friends, you can give multiple interpretations to this particular context. The water around can be given interpretation with respect to circumstances. It can be given interpretation with respect to the difficulties in life, or the challenges that you must be facing, or anyone is the ship can be regarded as organization, ship can be regarded as particular society, ship can be regarded as nations. So now if you give this different interpretation, that the fall of the individual, fall of the organization, fall of the society, fall of the nation is not because of the different circumstances, difficult circumstances, challenging circumstances, but because they allowed these water to get into because of their own weaknesses. Now I will give you an example here. For example, just after when the young civil servant just after recruitment they join the service, they are very high on this, that they are very integral, इतना अच्छा आंसर लेके आए हैं ethics में, 140-50 नंबर लेके आए हैं, so they are on this कि हम कुछ भी करप्शन वगैरह नहीं करेंगे. But when they enter into the service and then they see the work culture around them, they see कि bribery तो काफी open है, बिना bribery के तो काम ही नहीं हो रहा है, and everyone is asking you कि मेरा कमीशन कहाँ है, फलां का कमीशन कहाँ है, and then they will start taking bribes, they will start doing the corruption. And when someone asks them कि आप corruption क्यों कर रहे हैं, they will say अरे work culture है. ठीक है, water around me or the work culture around me promotes corruption. ठीक है, allowing of the corruption to into this individual is not because of the work culture, is not because of the prevailing corruption there, but because of the falling of the integrity, because of the lowering of the ethical standard, because of the lowering of his own integrity. ठीक है. Similarly, you can give the contrasting example as well. Contrasting example, for example, if I could say that there are some aspirants, आपने स्टोरी सुनी होगी सन ऑफ रिक्शा वाला. ठीक है, सन ऑफ रिक्शा वाला फेस्ड enormity of challenges, इतना डायर पॉवर्टी में थे, but he did not allow the circumstances to cow down. He did not allow circumstances to define his future. He did not allow circumstances to get into his dreams of becoming IAS. And because of his determination, because of the strength of his determination, strength of his character, he ultimately became the IAS. So it highlights in how many directions, in how many different directions you can give this interpretation. Individual, organization, society, nation, and different challenges, circumstances you can highlight. So that is why I will say that you should choose such topics in which you give multiple interpretation, because that will make your life easier. I will not recommend highly that you choose this type of essay because it will be very difficult for you to generate dimensions and arguments. Okay, that we'll see later when we move forward. So let us move to the one of the most important part of essay, that is introduction. It is often said that bell vegan is half done. This couldn't have been more contextual than when you write essays. ठीक है. It is very important that you understand कि क्या objective है essay लिखने, introduction लिखने के. These two I think you probably know that you need to catch the attention of the examiner.
and you need to generate the interest to read the whole essay. जब भी आपका फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ, फर्स्ट फ्यू लाइन आपका एसे के इंट्रोडक्शन का पढ़ा जाए तो एग्जाम को लगना चाहिए कि देखते हैं अब आपने क्या लिखा है. और एसे इंट्रोडक्शन, इनिशियल फ्यू लाइन, इनिशियल फ्यू पैराग्राफ शुड एक्ट एज हुक, act as hook that उसको इंटरेस्ट है कि आगे भी पढ़े. And this particular part is very important in especially in certain topics which ask about your stand, that it should clear your stand and understanding about the essay topic. Most of you miss out when you write your essay introduction on this. See, in the essay topics, for example, like philosophical essays, ठीक है, जिनमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द एसे टॉपिक वेल, और एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर कंटूर्स ऑफ द एसे, दैट व्हाट आर द interpretation that you are going to give to the essay. So to make that thing very clear, or your stand in the essay topic, ask you for a stand. For example, if I give you a question, a doubling of farmers income by 2022 is a myth or reality, I put it a question mark, then you need to answer that question in the introduction itself, so that examiner understands कि आपका stand क्या है. So these three objectives are very much should be very much clear to you when you write your essay introduction. I will tell you how you can achieve it, and this is a common question that aspirant says कि कितना length होना चाहिए. It should be around 130 to 150 words. It translates to around 1.25 page. At no cost your essay introduction should go beyond 2 pages. 2 पेज के beyond essay introduction किसी भी कीमत पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये वैसा ही हो जाएगा जैसे आपको अभी हो रहा था कि चालू कब हो रहा है, ठीक है, आप लेक्चर कब चालू होगा. ऐसे ही आपको ऐसे में एग्जामिनर फील करेगा कि भाई अब बॉडी कब चालू होगी, अगर आप कहानी लिखते लिखते 2 पेज 3 पेज लिख दिए तो, ठीक है. सो इन नो सर्कमस्टांसेस यू शुड गो बियॉन्ड 1.25 और 1.5 पेजेस, और 2 पेज तो मैक्सिमम लिमिट है आपकी, अगर आपका हैंडराइटिंग और जो फॉन्ट साइज है वो काफी बड़ा है तो, ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन इज, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है. So for that I will give you the CST approach. ठीक है, what is this CST? The CST refers to three important constituent of your essay introduction. C stands for context, S stands for scope, and T stands for thesis statement. You must check yourself whenever you write essay introduction to any of the essay, whether or not you have touched upon these three aspects, that is context, scope, and thesis statement. ठीक है. Having this structure very much clear in your mind will provide a definite structure to your essay introduction. So let's see क्या है ये. Building the context. Building the context mean you need to hook the attention of the examiner. कैसे कर सकते हैं? There are so many different ways to start your essay introduction. First is quotation. आपका बहुत फेवरेट है. Many of the aspirants I have seen कोटेशन याद करने में पूरी मेहनत लगा देते हैं, ठीक है. उनसे आप पूछो कि सर ये 15-20 कोटेशन मैंने याद कर लिए हैं, और इतनी मेहनत करते हैं ऐसे कोटेशन याद रखने में, दे फील ऑब्लिगेटेड टू यूज दोज पर्टिकुलर कोट्स. उनको लगता है कि अब इतनी मेहनत कर ली है तो लिख के तो आना है. मीन even though the essay topic is not asking for it, even though there is only a keyword that is related to that particular quote, they will write that essay. So there are huge chances of backfire. So please take caution when you start your essay introduction with quote. ठीक है. I am not a great fan of quotation because it at times it become difficult, because आपको quotation समझाना भी पड़ता है, फिर उसको essay topic से link भी करना पड़ता है. So it takes a huge space when you start your introduction. तो थोड़ा सा quotation को संभाल के यूज करना है. Quotation are very useful when you substantiate your argument. वहां पे बहुत अच्छे लगते हैं quotation, बट अगर आप quotation से स्टार्ट करने का सोचते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि रिपीटेटिव हो जाता है, क्योंकि आपको फिर समझाना पड़ेगा इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट स्टिल अगर आपके पास बहुत अच्छा कोटेशन है, बहुत अच्छी चीज है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद इट. सेकंड इज डिबेट. यू कैन ओपन अप अबाउट द essay topic through a debate. ठीक है. योर डिबेट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट और द बैकग्राउंड टू द essay topic. I will give you an example. That okay, let's see this particular essay for this. This is the essay that is written by one of my students. The essay topic is, a peace cannot be kept by force but can be achieved by mutual understanding. Peace cannot be achieved by force
but can be achieved by mutual understanding. It says कि आप किसी भी कीमत पे फोर्स से पीस अचीव नहीं कर सकते, है ना. आपको टर्म्स पे आना जरूरी है, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है फॉर ए सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग पीस. ठीक है, तो दो बातें हैं. पीस इज द एंड गोल and it is saying that there are two means. One is force and another is mutual understanding, and it says this particular means is futile and this particular means is good. So let's say what the candidate has written. The candidate has started with to bring peace, prepare for the war. Now this is exactly opposite of the what the essay topic is saying. Okay, to peace cannot be kept by force but can be achieved by mutual understanding, but in the same dimension. It is saying that to bring peace, prepare for the war. This is a Roman wisdom. How to achieve peace is a contested issue. Some argue that it is the sword that imposes the peace. Others say peace can come only through mutual understanding. Now you see how beautifully the candidate has used both quotation as well as the debate around a particular topic. ठीक है, इसने एक डायमेट्रिकली अपोजिट एक कोटेशन दिया है कि टू ब्रिंग पीस, प्रिपेयर फॉर द वॉर, एंड दैट इट हैज यूज्ड to open up the debate. That the some says that it is the sword that imposes the peace, while some say that peace can come through mutual cooperation, and from here you can build upon your essay argument. So you can use both quotation and debate in such a beautiful context, and so that आपका introduction start हो सके. ठीक है, so you can use debate as well. It is very much important जब for and against के argument करने हो, तो वहां पे डिबेट बहुत अच्छा तरीका हो सकता है. अगर आपके पास किसी फेमस इकोनॉमिस्ट का, किसी फेमस एनवायरमेंटलिस्ट का, किसी फेमस थिंकर्स के स्टेटमेंट्स हैं बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, सो आप डेफिनेटली वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंकर सेज दिस, ऑन द अदर हैंड दिस पर्टिकुलर थिंकर आर्ग्यूज लाइक दिस, एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन योर एसेज, जो आगे का आप कर सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करंट अफेयर इवेंट्स, the findings of recent reports. This particular way of starting of essay introduction is very much useful for those who are good in their GS. ठीक है, और जिनको बाकी सब करने में दिक्कत है, कोटेशन याद नहीं रख सकते, स्टोरी एनेक्डोट के संग कम अप नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि वो करंट अफेयर्स और रिसेंट इवेंट से चालू करें. फॉर एग्जांपल, if I give you an essay topic, whether Indian democracy कहाँ जा रही है. So to start with such essay topic, you may always quote the recent reports as highlighted India as a flawed democracy or elected autocracy. ठीक है, and this has generated a lot of debate as to where we are going as a nation or where we are going as a democratic nation. ठीक है, so by bringing the findings of the recent report, ठीक है, रिपोर्ट की फाइंडिंग कैसी, थोड़ी सी प्रोवोकिंग फाइंडिंग्स लाइक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी. ठीक है, सो यू मे यूज दोज फाइंडिंग्स टू ओपन अप द डिबेट और टू लिंक टू द एसे टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू मे यूज टू स्टार्ट योर एसे इंट्रोडक्शन. फैक्चुअल एसेज में इस तरह का इंट्रोडक्शन काफी इफेक्टिव है. देन अनदर इज स्टेटिंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वहीं के वहीं जनरेट करना थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस might be difficult. So let's say this is the essay topic that UPSC has given last year only, I think. The life is a long journey between human being and being human. So in this essay you may start with the questions, rhetorical questions like what is life, what does it mean, where is it taking us. These questions have started human civilization since the time immemorial. Okay, and then you can build upon your essays, because when you say what is life, what does it mean, where it is taking us, you are essentially coming to this aspect only, that life is a long journey. When you are saying where it is taking us, so it is taking you from journey between human being and being human. ठीक है, तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं by asking thought provoking questions. थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये, एंड बैकफायर बिल्कुल कर सकता है अगर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं. So I will recommend until unless आपके prepared lines पे ही अगर thought provoking questions आ गए हैं, then only you go ahead with this. वहां पे जाके प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करना. ठीक है, बिकॉज बैडली स्टार्टेड इंट्रोडक्शन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके एसेज के लिए. Now this is another asset, another way of starting, that you define and explain keywords. I would not rate this very highly. ठीक है, let's say this is another asset topic of UPSC only. Culture is what we are, civilization is what we have. So there are two important keywords. One is culture, other is civilization. So you may start your essay introduction by defining culture and civilization and then linking both of them in a manner that relate directly to the essay topic.
So that is how you may start. But my dear friends, this type of essay introduction looks better. This type of introduction looks better in GS, but not in essay, because there is nothing interesting in when you define something like that. I'm not at all saying that you should not define keywords. Mind you, I'm not at all saying that. I'm just saying you should not start your essay introduction with the definition of keywords. बहुत बोर कर देता है, ठीक है? Because आप कुछ ऐसा नहीं बताने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, ठीक है? You should definitely define, but not at the start. ठीक है, probably at the end of introduction or probably when you start building your body, and उसके जस्ट पहले आप बता दीजिए before moving on let's just understand what culture is और what civilization is. वैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट स्टार्ट यहाँ से मत ही ना ही करें तो अच्छा है. बट अगर आप फंस जाएं, आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then this is your way forward. आप सिंपली डिफाइन करके स्टार्ट कर लीजिए. Now this is something that is very famous, very effective, and can help you score great marks. Any fictitious story or real life anecdote. So when you do this, I would say that there are two important conditions when you use this particular method: a story or anecdote. One, it should be interesting. ठीक है, आप कोई मुंडेन सी कहानी लिख के आ गए, आप कोई जनरल स्टोरी लिख रहे हैं, तो मतलब बैकफायर करेगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर राइटिंग ए स्टोरी doesn't mean it is interesting. It has to be interesting. Second thing is, an anecdote or any story, if it is interesting, it needs to be told in an interesting manner. ठीक है, आपको लिखने का स्टाइल भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. आपने देखा होगा कई बार मूवीज आप देख के आते हैं, और मूवी जब देखते हैं तो कहते हैं कि यार स्टोरी तो ठीक थी पर मजा नहीं आया. ठीक है, आप यू लॉस्ट द एंगेजमेंट, आपको आपको बीच में से इंटरेस्ट लूज कर गए. सो वी विल सी दिस एग्जांपल. This is, I understand, totally understand, this is quite a long anecdote. ठीक है, but when we read it together, I will try to highlight how to write an anecdote in an interesting manner. ठीक है, तो इसको देखते हैं. Let's say the essay topic is that your attitude determines your altitude. ठीक है, let me just highlight. Your attitude determines your altitude. This is the essay topic. ठीक है, now someone has written this very beautiful anecdote. ठीक है, so let's see how it is written. Once a young schoolboy was caught in a fire accident in his school and was assumed that he would not live. His mother was told that he was sure to die, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. Even if he were to survive, he would be a cripple throughout his life. Now, can you see how beautifully it has built the background of the story? Circumstances कितना beautifully narrate किए गए हैं कि massive fire में the boy was caught in a massive fire, expected to be not alive क्योंकि devastated lower half of his body, and if he were to survive, he would be a cripple throughout his life. सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि circumstances कितने dire. Now you look at the second paragraph. But the brave boy did not want to die. Now, can you relate that how this particular paragraph is relating to the attitude? But the brave boy did not want to die, nor did he want to be a cripple. Absolutely clear determination. He did not want to be a cripple. His determination to walk was indomitable, and his persistence finally paid off. He began to walk to school, then run to school, to run for the sheer joy of running. Later in the college, he made the track team. Now, this particular highlight his attitude, that he refused to accept the circumstances. अभी मैंने ship और water का जो example लिया, he refused the water to get into his mind. He refused the circumstances to define his destiny. That he will not be a cripple. He was determined. Determination is an attitude. Determination is an attitude. ठीक है, he was determined to walk. So background is built very nicely. Attitude is very, very nicely explained. In February 1934, in New York City's famed Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, very beautifully it is relating to the background, not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run. This determined young man, now it is linked to the attitude. Background, attitude. Who would surely, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. Now, this aspect talk about altitude.
your attitude determines altitude. This particular paragraph talk about the performance, the achievement, the altitude. Now this is what I call a complete anecdote. Very beautifully background is built, very beautifully attitude is explained, very beautifully attitude is highlighted, how attitude is determining the altitude. So an interesting story is told in an interesting manner. So my dear friends, when you collect anecdotes by reading newspapers or by reading your essay, I will request you to pay special attention that as to how will you write that anecdote. आप उसको लिखेंगे कैसे, इस पे जरूर जरूर ध्यान देना है. So CST, context is done. The second part is scope. So what is scope? Scope is like the trailer of a movie. मूवी का ट्रेलर देखे हैं आपने, सभी ने देखे होंगे, यूट्यूब पे आते रहते हैं, आते रहते हैं. क्या करता है ट्रेलर आप में क्यूरियोसिटी जनरेट करता है. ट्रेलर क्यूरियोसिटी जनरेट करता है मूवी देखने. सेम गोज हियर. आपको छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाने हैं अपने एस्से के, सो दैट एग्जामिनर में इंटरेस्ट आए कि अरे देखें तो सही क्या है, देखें तो सही बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, देखें तो सही. So it is like a trailer of the movie, but you should not reveal much. It is a broad outline. You should not reveal much. Now I will tell you how does it help you. Apart from generating curiosity and interest, just like a movie trailer does, it also helps you in building continuity and familiarity. आप सोचेंगे कैसे? To give you this illustration, I will recollect one of my instance that I think this happens with everyone. जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, ठीक है? For example, when I went to Kharagpur for the first time, so there was an announcement at New Delhi railway station that the Purushottam Express, जो इलाहाबाद, मुगल सराय and गया, जमशेदपुर होते हुए खड़गपुर जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर फलाने पे आ रही है. तो जब मैं पहली बार ट्रेन से खड़गपुर के लिए ट्रेवल कर रहा था, when the junctions were coming, I was able to correlate. अरे उसने कानपुर बोला था, उसने इलाहाबाद बोला था, उसने मुगल सराय बोला था, सॉरी दीनदयाल उपाध्याय आई थिंक, नहीं मुगल सराय बोला था एंड गया बोला था. सो जब स्टेशन आ रहे थे, it was helping me build the continuity. अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, familiarity, क्योंकि मैं पहले वो स्टेशन के नाम सुन चुका हूँ. The same thing happen when you write the scope. जब आप थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस अपने एसेस के बारे में बताते हैं इंट्रोडक्शन में, और जब एग्जामिनर आगे पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ आपने पहले इसकी बात की हुई है, और दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स जिस पे आप बात करने वाले. तो कंटिन्यूटी बनाने का एफर्ट थोड़ा सा आपका लाइट हो जाता है, बिकॉज दे एक्ट एज माइलस्टोन्स. दो स्मॉल ग्लिम्सेस एक्ट एज माइलस्टोन. जैसे रेलवे स्टेशन के माइलस्टोन है, ऐसे ही इसके भी माइलस्टोन्स है. अच्छा एक चीज में और है, इट हेल्प्स यू डिफाइन द कंटूर्स ऑफ द एसे. कंटूर्स का मतलब क्या है? कंटूर्स का मतलब ये है, स्पेशली इन द एसे टॉपिक्स जो इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, जिनमें आपको मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देने होते हैं, ठीक है? अब उसमें एग्जामिनर को कैसे पता पड़ेगा कि आप किन किन बाउंड्रीज में इंटरप्रेट करने वाले हैं? मैंने आपको बोला था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि एग्जाम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन इज एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है ऐसे टॉपिक. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपका यहां से क्लियर होता है जब आप कंटूर्स बताएंगे, जब आप स्कोप बताएंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक, जब आप लिंक करेंगे डिफरेंट मैक्रो आर्गुमेंट को, मैक्रो आर्गुमेंट पे मैं बात करूंगा बॉडी में, ठीक है? और मैक्रो आर्गुमेंट ही लिखने होते हैं स्कोप बताने में. मैक्रो आर्गुमेंट आर बेसिकली दोज बिग माइलस्टोन्स. तो एग्जामिनर को पता पड़ेगा कि ओके आप इन डिफरेंट कंटूर्स के अंदर आप अपने ऐसे की बात करेंगे. So it will help you in that way also. But I must say it is a very challenging thing to write. Very, very challenging. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं because I see often students they write very passively. कैसे लिखते हैं? In this essay, we will see blah blah blah. I totally understand and acknowledge that this is definitely the way of writing scope, but it is a very passive and mundane way of writing scope. डल है, बहुत डल है. ऐसे लिखो, ऐसे स्कोप लिखोगे तो मतलब मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा.
तो थोड़ा आपको वेज जनरेट करने हैं कि स्कोप हम कैसे लिखें, कैसे हम एग्जामिनर को बताएं कि देखो भाई इन इन चीजों पे बात करें। एक एग्जांपल लेंगे हम इंट्रोडक्शन के स्लाइड्स के एंड में कि हम कैसे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि स्कोप किसको बोलते हैं, स्कोप लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसको लिखना है, इसको हम देखेंगे अभी आगे। Now this is the third and most important part of CST. C stood for context, S for scope, T for thesis statement. Now thesis statement is a buzzword in the market, but very few people understand किसका मतलब क्या मतलब है thesis statement का। thesis statement is simply your stand on the essay. कुछ इसको उससे कंफ्यूज कर देते हैं, इन दिस essay you will do this this this, इसी को thesis statement बोल देते हैं। नो नो, that is wrong. Thesis statement your stand on the essay topic, and it is very very much important in the essays which ask for your opinion. एकदम दिमाग में भर लीजिए इसको, which ask for your opinion. If I say doubling of farmers income, myth or reality, and if I put a question mark there, whether it is a myth or reality, if I put a question mark there, you must answer this question as to what do you think of it, whether it is a myth or reality. One of the objective of essay introduction was it should make it clear to the examiner that what is your stand, and you will achieve this objective by writing thesis statement. It is very important. क्वेश्चन मार्क में है वहां तो आपको लिखना ही है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द एसे टॉपिक विच हैज नेगेटिव कोनोटेशन और विच आर डिबेटेबल, जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच एसे टॉपिक। क्या एग्जांपल है साहब इसके? I will give you an essay topic that says 2013 का 2013 में ऐसा टॉपिक आया हुआ है that science and technology is a panacea for growth and security of the nation. Now if I ask you, do you really consider it as a panacea? No, no, my dear friends. It is definitely has played a great role in our lives, but is not the panacea. Panacea तो नहीं। If I give you another essay topic that the achievement of new women is myth in India, 2017 में पूछा UPSC, will you agree to it? Any rational person, any aspiring civil servant should not agree to it, that the achievement of new women is myth in India. So when the essay topic is framed in such a negative connotation, जिससे agree करना difficult, science and technology the panacea or doubling of that achievement of new women is a myth. In all such essay topic, thesis statement is very very necessary. ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओपिनियन सीधा सीधा, और जो नेगेटिव कनोटेशन है डिबेट है जहाँ, ठीक है, वहां पे इन दोनों जगहों पे आपका स्टैंड वेरी मच क्लियर होना चाहिए इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। इसमें अब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन द सेंस की जो जिनसे आपको एग्री करना है, जिनमें डिबेट आप नहीं कर सकते, पेपर पे एटलीस्ट ऐसे में तो नहीं कर सकते, प्राइवेट लाइफ में तो भले ही करना है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या कोई डिबेट करेगा? इट इज नॉट डिबेटेबल। इसमें आपको अग्री करना है कि हाँ भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह के जो ऐसे टॉपिक होते हैं वहां पे यू मे ओमिट थीसिस, क्योंकि वहां पे आपका स्टैंड स्कोप लिखते लिखते ही क्लियर हो जाता है कि इट इज एंटायरली यू विल बी अग्रीइंग टू दिस। बट ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में, नेगेटिव कोनोटेशन वाले क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है इसका जब भी आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिखें। तो ऐसा सीएसटी अप्रोच में कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप विल हेल्प यू इन जनरेटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। This statement will help you in making your stand clear to the examiner so that your all three objectives of writing essay introduction gets fulfilled, ठीक है। तो हमेशा अपने आप से पूछना है कि ये तीनों चीजें मैंने की है कि नहीं की है। Let's read it. This is the essay topic that UPSC gave in 2013. It says that science and technology is a panacea for the growth and security of the nation. Now I will give you this format of although and yet. Let's read it together. Although, if we look around in our everyday life at growth history of the nations, we find that science has played a ubiquitous role from fulfilling basic human needs to guarding our borders. Because as I talk about growth and security,
guarding our borders, fulfilling human needs. From accidentally finding a continent to audacious jump to the moon. Talk about growth. So can you see that this particular lines are in fact scope? You are telling the examiner that you will be talking about basic human needs. You will be talking about how the SNT is helping guarding borders. You will be talking about how it is helping you find the new avenues like moon. These are those milestones that I was talking about. Yet, science can't be termed as panacea. This is absolutely your thesis statement, absolutely your stand. Science can't be termed as panacea. You're making it very clear to the examiner. Science can't be termed as panacea because of its essential instrumental value and incompleteness without human touch. What do you mean by essential instrumental value? Essential instrumental value is the science and technology is nothing but the means. They're nothing but the tools in the hands of people. It depends upon us, the humans, how we use this. Same nuclear energy से weapon भी बना सकते हैं और power plant बना सकते हैं. It depends upon us कि हमको कैसे use करें. So because of its essential instrumental value and incompleteness without human touch means that you cannot replace human touch. एक माँ का प्यार you cannot get from science and technology. Robot से नहीं मिले. ठीक है? So by you may adopt this format of although and yet. Although and yet format is very much important in the essay topic जो थोड़ा debatable होती है. ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि achievement of new women is myth in India. Although if you look around the society, if you look at the challenges that the women are facing in the everyday life, ठीक है? यहाँ पे कुछ instances, broad milestones, ठीक है? It looks that it is a myth, ठीक है? It is an upcoming myth, but to term it कि ये impossible. Essay topic was that the achievement of new women is myth in India. To call it a myth will be far from reality. ठीक है? इस तरह से भी आप अपने although and yet के फॉर्मेट में आप अपना एक ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें आपने स्कोप को और थीसिस स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया है. Although this yet this. Debatable topic में you can use it. ठीक है? I hope I have made myself very much clear कि स्कोप क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, दोनों को मर्ज भी कैसे कर सकते हैं. ये फॉर्मेट को आप दोनों में आपके दो टॉपिक आएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, किसी एक में आप यूज कर सकते हैं. ऑल्दो एंड येट दोनों में मत करना, बहुत ऐसा लगता है कि पलट के आ गए. ठीक है? सो आई होप एवरीवन इज क्लियर. यहाँ तक इंट्रोडक्शन में सभी को सब कुछ क्लियर है. लेट्स लुक एट द बॉडी. One of the most important part of essay. Now, body में हमको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसको समझने के लिए I talked about two things. One is macro dimension, other is micro dimension. ठीक है? पहले समझते हैं कि मतलब क्या है, then I will talk about कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे हम बॉडी पार्ट लिखेंगे. What are the macro dimensions? Macro dimensions are nothing but when you answer the broad questions or themes of the essay topic. And by answering those questions, you aim to achieve the holistic coverage of the essay topic. I will give you an example. If suppose this is the essay topic, all it takes for evil to triumph is for good men to do nothing. अच्छे आदमी कुछ नहीं करेंगे तो बुराई जीत जाएगी. बुराई जीतने के लिए केवल एक कंडीशन है कि अच्छे लोग कुछ ना करें. This is your essay topic. Now, when you look at this essay topic, क्या होता है? हम कैसे सोचते हैं? Socio economic, political, pastel approach, past, present, future. No, absolutely no. You are not here to answer pastel approach. You are not here to answer past, present, future. You are here to answer this essay topic. And that is why you need to generate the macro dimensions. बहुत important है, समझिएगा इसको. That is why it is important to generate macro dimensions. Macro dimensions simply वही है कि अगर मैं आपको इस पे भाषण देने को बोल दूं कि आप 15 मिनट इस पे चर्चा कर लीजिए, तो क्या आप इनमें से केवल एक ही डायमेंशन पे चर्चा कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप केवल यही बता पाएंगे कि कैसे evil wins when good men do nothing, और इसी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए, जो मैं अप्रोच जनरली लोगों में देखता हूँ.
what they do is they will take this quotation and they will apply it in a different context. सोसाइटी में ऐसे कर देंगे, पॉलिटी में ऐसे कर देंगे, इकोनॉमी में ऐसे कर देंगे, एनवायरमेंटल स्फीयर में ऐसे, सिक्योरिटी में ऐसे हो जाएगा। और ऐसे गुडमैन कुछ नहीं कर रहे हैं तो इविल ट्रायम्फ करते हैं। तो अगर आपको मैं भाषण देने को बोलूं इस पे, तो क्या केवल इसी मुद्दे पे बात करोगे? नो, you need to answer such questions. The questions are, why do good men remain silent? You need to answer this question. What are the adverse consequences of inaction? The triumph of evil. That of course you all do. What are the significance of action? What happens when good men do actually anything, do actually something? What happens? अगर आपको ये किसी को आर्गुमेंट देने हैं, इन ऐसे यू नीड टू आर्ग्यू लाइक ए लॉयर, यू नीड टू डिफेंड योर स्टैंड। तो अगर आपको किसी को ये आर्गुमेंट देना है कि भाई गुड मैन अगर कुछ नहीं करेंगे तो इविल का ट्रायम्फ हो जाएगा, आपको ये भी बताना है कि गुड मैन अगर कुछ कर देंगे तो अच्छाई की जीत कैसे हो जाएगी। How poetic it is, huh? Today is Dussehra only. So you need to talk about the significance of action as well. अरे भाई बताना तो पड़ेगा ना, you need to talk about the good instances as well, जहाँ पे लोगों ने कुछ अच्छा किया। Then you need to talk about the relevance in present times. Very, very important. Then there should be your own analysis. इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड में। And then way forward. Way forward क्या है? अब इसको थोड़ा, why do good men remain silent? क्यों साइलेंट पे रहते हैं? साइलेंट पे रहते हैं, probably they are not courageous. Probably they have very limited understanding of their responsibilities. अभी रोड एक्सीडेंट हो जाए and if somebody is lying in the pool of blood, people will go. 2012 में जो निर्भया वाला केस था, उसमें it was told that both of them were lying almost naked on the road in such a bad condition. Nobody stood and helped them. And next day, all of them were at India Gate with the candles. So perhaps they have limited understanding with respect to the responsibility. अपनी responsibility को बहुत छोटा समझ के रखते हैं. Perhaps there is not a good political space. Political space means that you cannot express your opinion. Good men cannot express their opinion. Good men can do their work. ये तानाशाही देशों में होता है. थोड़ा यहाँ भी लगा है. Why do good remain silent? Similarly, what are the adverse consequences of inaction? It emboldens the perpetrators. कि अब करो तो कोई बोल नहीं रहा है. पेट्रोल के प्राइस अगर कोई बोल नहीं रहा है तो बढ़ाई जाओ. अभी सेंचुरी मार दी या डबल सेंचुरी भगवान करे लगी जाएगी. Significance of the action. It was Gandhiji. Gandhiji did not submit himself to the evils. जब ट्रेन के कंपार्टमेंट उनको फेंका गया, he started the सत्याग्रह. देश में जो अंग्रेजों का शासन था, he started this whole movements, mass movements. So this is what happens when good people take initiative. और क्या एग्जांपल है? राजा राम मोहन राय. और क्या एग्जांपल है? You talk about this RTI movement that led to this RTI movement. You talk about India against corruption movement that led to the institution of Lokpal. So this is what happens when good people take action. So you need to give those case study an example. What is the relevance in present times? Media. If there is evil happening, if there is injustice happening, you need to speak up. It is your responsibility. Just as an individual, an institution, it is your responsibility. Whistleblowers, very much relevant. Corruption हो रहा है, work culture में problem है, internal audit का failure से, you need to speak up. Citizens need to demand accountability. So you need to talk about the relevance of the relevance in present time of this quote by linking it to the present context. Analysis पे हम चर्चा करेंगे. Way forward as to what can be done to inculcate such behavior that people speak up against the evil. इसमें आप सेफगार्ड की बात कर सकते हैं कि विशल ब्लोअर को सेफगार्ड किया जाए. इसमें आप मोर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की बात कर सकते हैं, inculcating the citizens, making citizens empowered to ask questions.
बाय सोशल ऑडिट, बाय आरटीआई, इसकी बात कर सकते हैं। फैमिली लेवल पे वैल्यू इनकलकेशन की बात कर सकते हैं, वैल्यूज लाइक करेज, ठीक है। तो इस तरह के वे फॉरवर्ड हम यहाँ दे सकते हैं। सो व्हेन यू राइट इन अ मैनर, यू आर एबल टू गिव अ वेरी डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव एन एस्टे टॉपिक, rather than merely talking about different consequences, different social political dimensions। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है मैक्रो डायमेंशन। Let's take another example. The greatest threat to our planet is a belief that someone else will save it. हमारे प्लेनेट को कोई और बचाएगा, ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे प्लेनेट। इसका मैक्रो डायमेंशंस क्या हम जनरेट कर सकते हैं? You may talk about the importance of this planet or environment for our survival, very briefly. Then you may mention about the reasons for such beliefs. अब आप देखो, what I see majorly is that student will talk about mostly this. What are the major consequences? Just to highlight the threat, and they forget these two aspects. Then you also need to talk about reasons for such beliefs that lead to inaction and apathy towards the planet. इसको हम आगे लेंगे, अभी माइक्रो आर्गुमेंट समझाते हैं। Then you need to talk about the major consequences. Major consequences that highlight the greatest threat. आप यहाँ आईपीसीसी का रिपोर्ट कोट करिए, आइलेट्स डूब रहे हैं इसको कोट करिए, ड्रॉट, आपको पता है क्या करना है, बट केवल यही नहीं करना है, आगे पीछे की जो बातें हैं वो भी करना। अनदर साइड ऑफ द कॉइन, आपको ये भी बताना है कि ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा ये सोचा है कि someone else will save it. To talk about the very successful case study of international cooperation, Montreal Protocol. We have reversed this ozone depletion, ozone layer depletion. Very successful case study. It highlights what collective actions can achieve. A testimony to that fact what international cooperation can achieve. बताइए आप इसके बारे में, because you must not entirely agree with this कि someone else will save it. We have made efforts, ऐसा नहीं है, we have made efforts, and those efforts are bearing fruits. It is just that we need to do a lot more. That is how you need to build. That is how your logical ideas should flow from one to other. We need to do a lot more also. So I hope now you are able to understand कि macro dimensions क्या है. Macro dimensions basically is your approach, is your overview of the topic कि आप क्या क्या cover करेंगे, and this is what that you should write in your scope. Scope में आपको ये milestones लिखने. It is important to see that why it is that a good people remain silent even after knowing the consequences. You may mix also. मैं introduction में कैसे लिखते हैं वो बता. It is important that we understand that why do good people remain silent despite knowing the consequences. तो पता पड़ गया एग्जामिनर को कि consequences के बारे में बात करोगे और ये भी बताओगे कि good people क्यों silent रहते हैं. So macro argument लिखने हैं scope में, micro नहीं लिखने हैं जो मैं आगे. ठीक है, आई थिंक आपको मैक्रो आर्गुमेंट अभी समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी माइक्रो देखते हैं और क्लैरिटी लाने के लिए। नाउ माइक्रो आर्गुमेंट्स आर योर आई शुड से मोर कवरेज ऑफ दिस मैक्रो डायमेंशन, योर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैक्रो डायमेंशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऑल इट टेक्स फॉर इविल टू ट्रायम्फ, गुड फन टू डू नथिंग। एक है व्हाई डू गुड पीपल रिमेन साइलेंट, व्हाट आर द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। सो व्हेन यू एक्सप्लेन एनी ऑफ इट, these are micro dimension. Now if you say if you see first consequences, it emboldens the perpetrators. Now you can give the examples like Hitler का example देंगे तो क्या यूज करेंगे, क्या चीज है जो दिखाती है कि when good people remain silent, क्या चीज है, appeasement, policy of appeasement. Then rapists, because of the dysfunctional criminal justice system, सजाई नहीं होती है. Rapist, corruption, एवरेज ट्रायल टाइम कितना सारा ईयर्स का है. So all of this proves that it emboldens the perpetrators because good people are not taking action. Good people कौन है? Criminal justice system.
गुड पीपल कौन है? एबल नेशंस जो उस समय थे, जिनको कॉल लेना चाहिए। Impacts humanitarian activities. For example, when there was apartheid in the South Africa, Western nations respect silence. Same goes in Rohingya and Uyghurs. So it impacts humanitarian initiatives. It impacts the human rights protection. क्योंकि कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है. Then there is another consequence of stagnation of growth and evolution. Growth का आधार है friction. Age of enlightenment क्या था? Friction. You need to challenge the ideas. You need to challenge the status quo. Then only you can hope to improve. अगर good people बोलेंगे नहीं एक particular ideology के खिलाफ, तो कैसे वो improve करेंगे? How will there be any debate? Thing is, for example, this Raja Ram spoke against sati. He stood against the sati. At these times, people are standing against LGBTs for LGBTs rights. So that is how we are leading to progress. अगर good men बोलेंगे ही नहीं, तो society में progress बंद हो जाएगी. There is stagnation. Another thing is no one is safe. अगर हमको लगता है कि अगर हम बोलेंगे नहीं और चुप रहेंगे and we believe कि हम safe हैं, it is wrong. It will come to us. राहिंदौरी का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में. लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में. यहाँ केवल हमारा मकान थोड़े ही है. अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होंगे, तो इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग. एवरीवन, हर किसी को चपेट में आना. सो नो वन इज सेफ. अनदर कॉन्सिक्वेंस, गुड मैन अगर बात नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल नेशन से वो बात नहीं करेंगे, तो सब चपेटे में आएंगे, सब पे कॉन्सिक्वेंस. Then another consequence is decay of societal well-being because citizens do not have sense of duty. Take the case of clash of politics. They do not care. The good men do not care. लोग वोट देने ही नहीं जाते. Forget about the challenging the criminal antecedents of the candidates. वोट ही नहीं देना है. All it takes time for the good people is that good men do nothing. So these are the micro dimensions, and you need to ensure that you cover them adequately with the adequacy of depth. They should be adequately covered. एक पैराग्राफ में मेंशन करके नहीं छोड़ना. They should be adequately covered. Especially the dimensions, especially the macro dimensions, which relate directly to the asset topic. For example, if you say that all it takes for evil to triumph is for good men to do nothing, I will just ask you, कौन सा dimensions आपको लगता है should occupy most significant space? I am sure all of you will agree it is this: adverse consequences. Similarly, in this also, it will be this: major consequences. Greatest threat to our planet is someone else will save it. थोड़ा प्रोपोर्शन पे ध्यान देना है ना. आपको 10 पेज का राउंड लिखना है, 1.5 पेज इंट्रोडक्शन में, 1.5 पेज कंक्लूजन में, तो 7 पेज बचेंगे. तो 7 पेज में कितना किसके डायमेंशन पे आप डालेंगे? तो दैट शुड बी योर जजमेंट. जो थीम से रिलेटेड है डायरेक्टली, उस पे थोड़ा एडिक्वेटली स्पेस आपको देना. दैट इज अनदर माइक्रो डायमेंशंस जो इस वाले से कि हमने डिस्कस की थी. The greatest threat to our planet is a belief that someone else will save it. What are the important, what are the regions? और अगर regions को यहाँ पे ग्रेट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि why apathy towards the planet, that there is tragedy of common. We believe that is actually someone's responsibility. जो सबकी responsibility है, वो किसी की responsibility नहीं. ठीक है? Growth at any cost. It is one of the reason. ठीक है कि हमको तो ग्रोथ पे ध्यान देना है. हम तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम तो गरीब देश हैं, हमको तो ग्रोथ पे ध्यान देना है. डेवलप्ड कंट्री विल टेक केयर ऑफ द क्लाइमेट. पॉपुलेशन प्रेशर, हम तो पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, हमको तो रिसोर्स प्रोवाइड कराने हैं. अदर जो लो पॉपुलेशन है, जो मैनेज कर सकते हैं, वो ध्यान दें. डेवलपिंग नेशंस डिलेमा, ग्रोथ करें कि क्या करें, एनवायरनमेंट को बचाओ. ठीक है. देन एनवायरमेंटल लिटरेसी की प्रॉब्लम, पता ही नहीं है, लोअर सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. So it is like expanding a particular macro argument into micro argument. This is micro dimension. You should not write micro dimension in scope. I've seen this mistake by aspirants. ये माइक्रो आर्गुमेंट लिख देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस में ये लिख देंगे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल. अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल भी ले रहा हूँ,
मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल भी ले रहा हूँ, मैं प्रेजेंट एग्जांपल भी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एनवायरमेंटल एग्जांपल भी ले रहा हूँ। सारी पेस्टल अप्रोच मैंने एक मैक्रो डायमेंशन में लगा। तो ये खाली नहीं करना है हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, ये सब फलान ढकानी सब नहीं करना है। वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट वे ऑफ बोरिंग द एग्जाम। तो जो स्कोप लिखेंगे वो माइक्रो डायमेंशन पे नहीं लिखेंगे, मैक्रो डायमेंशन पे लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैक्रो डायमेंशंस क्या है, और ब्रॉड ओवरव्यू, big questions that you need to answer to the question, and micro dimensions are your explanation of those particular macro dimensions. ठीक है, यहां तक क्लियर है। बेसिकली ऐसे बनेगा ये, एक मैक्रो डायमेंशन, दूसरी मैक्रो डायमेंशन, तीसरी मैक्रो डायमेंशन, एक माइक्रो डायमेंशन, दूसरी माइक्रो डायमेंशन, माइक्रो डायमेंशन। अगर ये मेजरली थीम रिलेटेड है तो इसके 5 पॉइंट्स आ जाए, इसके शायद 2 ही रहे। तो ये ऐसा कुछ बनेगा आपके ऐसे में, ठीक है। ये है मैक्रो डायमेंशंस, ये है माइक्रो डायमेंशंस। अच्छा, आपका फेवरेट आ गया, पेस्टल अप्रोच, टेम्पोरल एनालिसिस। सो all of you know it. I will explain it, but I understand, I presume that most of you know it. कैसे यूज करना है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। How to cover all the major dimensions of the essay? It is, you may look at the temporal analysis. You may look in the past, you may look in the present, you may look in the future. You may look politically, economically, science and tech, law, environment, etc. You may look at a personal level, family level, state level, national level, international level. Or you may go through different GS syllabus topics. अब लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो भी है, ये आर नथिंग बट डिफरेंट लेंसेज through which you can analyze your essay topic. These are nothing but means. These are nothing but means to find the bigger macro or micro arguments. ये एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, ये जैसे मैंने आपको भी यहाँ भी दिखाया था, यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी ले रहा था, पॉलिटिकल एग्जाम्पल भी ले रहा था, ये पॉलिटिकल एग्जाम्पल हो गया, एनवायरमेंटल एग्जाम्पल भी ले रहा था, इन सेम मैक्रो डायमेंशन। लेकिन मैंने सोचा कैसे, जब मैं पेपर का फ्रेमवर्क बनाऊंगा, ऐसे का फ्रेमवर्क बनाऊंगा, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल पहले नहीं सोचूंगा, मैं पहले मैक्रो डायमेंशन सोचूंगा कि मुझे कौन कौन से बिग बिग क्वेश्चन हैं जो आंसर करने हैं। उसके बाद में माइक्रो डायमेंशन सोचूंगा, और अगर मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, देन आई विल लुक इनटू दिस अप्रोचेस। अरे यार, अगर मुझे कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करना है या मुझे कुछ थ्रेट दिखाना है, तो फ्यूचर का क्या थ्रेट। अगर मुझे कुछ आर्गुमेंट एग्जांपल नहीं मिलना है, तो शायद सोसाइटी से उठा लूं, एथिक्स से उठा लूं, इंटरनल सिक्योरिटी से उठा लूं, पॉलिटी से उठा लूं। तो ये टॉर्च है, ये आपके पास टॉर्च है जिसको लेके आपको देखना है, खंगालना है। अरे पॉलिटी में देख लूं क्या, सोसाइटी में देख लूं क्या, इकोनॉमी में देख लूं क्या। ये अपने आप में अंत नहीं है, अपने आप में एंड नहीं है, ये सिंपली मीन्स है, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये मिस्टेक्स आप सब करते हो, पूरा ऐसे का जो थीम है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एनवायरमेंटली कर देते। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो सारे सारे ऐसे में आप यही कर दें। ये तो ऐसे का डिमांड ही नहीं है। ऐसे का डिमांड है आप किन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, व्हाट आर द मैक्रो आर्ग्यूमेंट्स जिनके बारे में आप आंसर कर रहे हैं। ये तो केवल बैसाखी है आपके लिए। दिस इज मियर अ टॉर्च, मियर डिफरेंट लेंसेज थ्रू व्हिच यू कैन जनरेट डिफरेंट पॉइंट्स। अब फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करने हैं, तो यू कैन गिव सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, एनजीओ क्या करना चाहिए। हो गया आपका, ये बैसाखी हो गई आपके लिए। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, करा ना, उसमें वे फॉरवर्ड है, वन ऑफ द मैक्रो डायमेंशन इज वे फॉरवर्ड। तो बताइए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन देनी है, ऐसे बात कर लीजिए। फैमिली को, एनजीओ को क्या करना है, सोशल ऑडिट करवाने हैं, ऐसे बात कर लीजिए। मीडिया को क्या करना है, चीजें हाईलाइट करनी है, जो रॉन्ग डूइंग हो रही है उस पर बोलना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। With great power comes great responsibility. If this is your essay topic, you can analyze it.
फैमिली लेवल पे पावर किसके पास होती है? पैट्रियार्ची फैमिली में पावर मेल के पास होती है. So they need to exercise that power responsibly, meaning they should not subjugate women in their house. तो मेरा जो मेजर आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट वही है, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं सहारा ले रहा हूँ फैमिली का, स्टेट का, इन अप्रोचेस का, जस्ट टू लुक फॉर आर्गुमेंट्स, क्योंकि अचानक से तो पेपर में आएगा नहीं. तो जब भी आपको ऐसे टॉपिक मिले, डोंट जंप इनटू दिस. आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द 4 to 5 broad questions that you will be answering in your essay topic. What are the 4 to 5 macro dimensions that you will be discussing in your essay topic? और उसके बाद आप पेस्टल अप्रोच लगा दीजिए, कोई सा भी अप्रोच लगा दीजिए टू जनरेट द क्वालिटी पॉइंट्स. आपको बेसिकली 7 ही पेज लिखने हैं, 3-3, 2-2 पॉइंट आप सब में लिख दीजिए, किसी एक में ज्यादा पॉइंट लिख लीजिए जो ज्यादा सीधा सीधा ऐसे टॉपिक से रिलेट करता है. बहुत आसान है. इंटर सिक्योरिटी का 0.5 टेक्नोलॉजी, पहले से आपको गोचर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी लग जाएगा वहां. So when you do all of this, you must maintain the flow and central idea of this. ये को नहीं करते, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट. सेंट्रल आइडिया और फ्लो तभी मेंटेन होगा जब आप मैक्रो आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में एसेस. बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं मैक्रो आर्गुमेंट. आप खुद सोचिए, अगर मैं देता हूं कि फॉर ऑल इट टेक्स फॉर इविल टू टाइम पेस फॉर गुड मैन टू डू नथिंग, अगर आप इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में केवल यही प्रूव करते चले कि इविल जीत रही है, इविल जीत रही है, इविल जीत रही है, इविल जीत रही है, क्योंकि इसमें गुड मैन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आफ्टर 2 या 3 पेज एग्जामिनर बोर हो जाएगा. कैसे पढ़, उसको लगेगा हाँ यही तो आने वाला है, यही तो आपने कह दिया. तो सेम चीज को कितनी बार बोलो, आपने सेम चीज को 4-5 तरीके से समझा दिया, 4-5 डायमेंशंस के आपने मैक्रो आर्गुमेंट्स के एग्जांपल दे दिए. जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. एक्सप्लेन व्हाई पीपल रिमेन साइलेंट. कोई रीजन उसके भी तो हैं. एक्सप्लेन दैट, कम अप विद योर ओन एनालिसिस. आगे डिस्कस करूंगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट. डू नॉट मेक योर एसे मियरली डिस्क्रिप्टिव. ये डिस्क्रिप्शन इसी को बोलते हैं कि बस बता दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि इविल जीत रही है, इविल जीत रही है, इविल जीत रही है. दिखा दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटर थ्रेट टू प्लेनेट इज समवन एल्स विल सेव इट. बस थ्रेट दिखा. यह डिस्क्रिप्टिव एसे है. वन ऑफ द शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग योर एसे अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि 3 पेज के बाद आप खुद नहीं पढ़ोगे, लगेगा ये लिखेगा, ये लिखेगा, हेडिंग पढ़ के समझ में आ जाएगा ये लिखेगा. ठीक है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर इन दिस. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. What are the other demands of the content? Macro dimensions. There should be some element of originality in your essay. अगर आपको 130 से 150 जाना है, अगर आप 130 हिट कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने essay. 130 से 150 जाना है, for that there has to be some originality. कुछ originality होनी चाहिए. 150 तभी आएगा. कैसे लाओगे ओरिजिनलिटी? व्हाट आर द डिफरेंट वेज? फर्स्ट, वन ऑफ द वेज टू गिव सॉल्यूशंस विद केस स्टडी. अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं वाटर स्कार्सिटी पे, आप जैसे वैसे लिखा थ्रेट टू प्लेनेट पे, या जो भी आप ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, यू मस्ट कम अप विद द सॉल्यूशंस. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट डिबेट पे, यू मस्ट गिव द सॉल्यूशंस. And when you give the solutions, you must give specific case studies proving that where those solutions have worked. I totally understand कि हर सजेशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर 1 या 2 तो आपको जरूर देना. आप लिख रहे हैं डेवलपमेंट को बचाएं, एनवायरमेंट को बचाएं. You give the example of गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे lions have increased in the number with the cooperation of Maldhari communities with which the proceeds of ecotourism are shared. So that's highlight how beautifully both of them go hand in hand. आप एनवायरमेंट भी बचा रहे हैं और सस्टेनेबल इनकम भी जनरेट कर रहे हैं. वाटर स्कार्सिटी पे लिख रहे हैं तो बताइए वाटरशेड मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. आल्सो टॉक अबाउट द मिशन काकाटी ऑफ तेलंगाना, कि वो कैसे कितना अच्छा काम किया गया है वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने. सो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कुदुम्श्री का मेंशन होना चाहिए, कुदुम्श्री को डिटेल में बताना चाहिए कि इट इज नाउ विद अ मास मूवमेंट. So you must give specific case studies to make your answers distinct, to prove these solutions have worked elsewhere. और इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी आती है, छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं, जरूर नोट डाउन करके रखिए, यहीं पे वो काम आएंगे सबसे.
Then your own observation, बहुत important है. This makes your essay different. If I give you an essay topic called rights and responsibilities go hand in hand. Essay topic is rights and responsibilities goes hand in hand. Now you may very beautifully highlight the scene at traffic light. Traffic light is something very common that all of us have experienced. So there is a traffic light here. The right of someone to pass on green is contingent upon the responsibility of the other people to stop. That's how rights and responsibility goes hand in hand. ग्रीन बत्ती पे कोई तभी जा पाएगा जब रेड बत्ती पे कोई रुक जाए, responsibility कोई अपनी निभाए. So when you come up with such observation of everyday life, it makes the examiner think कि कितना अच्छा insight है आपका, कितनी अच्छी clarity है आपको. तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऑब्जर्वेशंस देना. थोड़ा ये चीजें डिफरेंट बनाएंगे आपके essay. वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस. एनालिसिस इज समथिंग, या तो आप खुद की दे दो या किसी थिंकर की दे दो, मेकिंग इट योर ओन, दैट इज योर चॉइस. एंड एनालिसिस समथिंग दैट हाइलाइट्स थोड़ा सा आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में एग्जामिनर को बताता है. For example, in this essay, science and technology are panacea for growth and development of the nation. Analysis is that science and technology is essentially the instrument. ये एक इंस्ट्रूमेंट है और डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करें. एंड इट इज नॉट द पेनिशिया. जो भी आर्गुमेंट है वो आप लिख दीजिए. दैट इज वाई जब इंस्ट्रूमेंट है हम कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब है हम कैसे यूज करेंगे डिटरमाइन होगा अपने वैल्यूज से. अगर हम हमारे अंदर वैल्यूज ग्रीड की है तो हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे और वी विल मेक द एनवायरनमेंट टॉक्सिक. अगर हमारी वैल्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है तो हम perhaps will moving towards more organic way of doing things. तो टेक्नोलॉजी कैसे यूज होनी है ये हमारे वैल्यू सिस्टम डिसाइड करेगा. और देन वी कैन टॉक अबाउट द वैल्यू सिस्टम, वैल्यू एजुकेशन कैसे करनी है. Here all it takes for the evil to triumph is for good men to do nothing. क्यों कहा जा रहा है गुड मैन, क्यों कहा जा रहा है, ह्यूमंस की बात क्यों हो रही है, क्यों हो रही है. ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि कुत्ता बिल्ली शेर अगर चुप है तो इविल ट्रायम्फ कर देगा. उनको तो ब्लेम, एनिमल्स को तो ब्लेम नहीं किया जा रहा है, यहाँ ह्यूमंस को क्यों किया जा रहा है. इट इज मैन एंड वुमेन बोथ. ह्यूमंस को क्यों ब्लेम किया जा रहा है. यू गिव योर ओन एनालिसिस बिकॉज ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ कॉग्निटिव जजमेंट्स. दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. And when they can differentiate between what is right and wrong, it becomes absolutely imperative upon them that they stand with the right. That is why it is said that good men should do something. That is why it is an obligation. So such analysis जो phenomenon को explain कर रही हो, जो कुछ insight दे रही हो, ये पैराग्राफ आपके essay में जान डाल. आप इसमें अपना पैराग्राफ दे सकते हैं, किसी थिंकर्स का दे सकते हैं, ये आपका चॉइस है. But some sort of analysis must be there in your essay. इसको बहुत ध्यान रखना है. Then only you can hope कि आप 150 टच कर पाएंगे. Because these things will make your essay look different. Your essay will stand apart. मजा आ जाएगा एग्जामिनर को पढ़ के, क्योंकि आपके बारे में बता रहा है ना, ये आपके बारे में बता रहा है कि आप कैसे सोच रहे हैं. ये बता रहा है कि ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि we can make a judgment about rightness or wrongness. यहां बताता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. तो अपना कुछ आइडियाज दीजिए, अपना कुछ ओरिजिनल दीजिए और यू विल गेट दोज मार्क्स. इसका बिल्कुल ध्यान रखना है. सो इसको कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि हर टॉपिक पे सोच के रखिए. वुमेन पे, क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे, वाटर, मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं सब पे सोच के रखिए कि पंच लाइन्स आप क्या देंगे, एनालिसिस आप क्या देंगे, किसी थिंकर्स की कोटेशंस, थिंकर के पर्सपेक्ट्स from different books, great books होती हैं. For example, this 21st century for 21st lesson for 21st century, great book. Homo sapiens is a great book. वहां से आप उठा सकते हैं insights and you can put them here in analysis. तो ये बिल्कुल लुक अपार्ट कर देगा, आप स्टैंड अपार्ट कर देगा आपके essay को. प्लीज ध्यान दीजिए और प्रिपेयर करिए इनको. लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े. अरे करंट अफेयर न्यूज़पेपर तो कंपाइलेशन में मिल जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर से आपको हेडलाइन जरूर पढ़नी चाहिए.
क्योंकि हेडलाइंस विल हेल्प यू इन दिस, हेडलाइंस विल गिव यू ऑब्जर्वेशन, हेडलाइंस विल गिव यू केस स्टडीज, हेडलाइंस विल गिव यू दिस एनालिसिस। सोच के रखिए, तैयार करके रखिए, एग्जाम में तो टाइम नहीं होगा, एग्जाम में सोचें कि वहीं पे कबाड़ लेंगे सब, ऐसा नहीं होगा। कैसे लिखना है? फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। अगर ये ऐसे का आपका पेपर है और ये आपका अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, मेक योर आर्गुमेंट वेरी क्लियर, दिस इज माय आर्गुमेंट एंड दैट आर्गुमेंट शुड बी फॉलोड बाय एग्जांपल, फैक्ट्स, एनीथिंग दैट सब्सटेंशिएट। अगर आप देखें तो यहां देखिए ये सब्सटेंशिएशन हो रहा है। It emboldened the perpetrator, just as it did with Hitler, just as rapists are emboldened, just as corruption is emboldened. ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल। दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एसे, बिना सब्सटेंशिएशन के, आइदर थ्रू रिपोर्ट्स और थ्रू कोटेशन और थ्रू एग्जांपल्स और थ्रू डाटा, बिना किसी सब्सटेंशिएशन के योर एसे विल बी टिमिड। अरे कोई आपकी बात क्यों मानेगा, क्यों मानेगा एम्बोल्ड द परपेट्रेटर, क्यों मानेगा बिना किसी एग्जांपल के? मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। So to give that depth, you must complement each of your argument with any observation, quotation, data, anything. Data थोड़ा कम यूज करना है, but बाकी चीजें आप लिख सकते हैं. Examples and observations are very important. So this should be the format to write. Argument, examples. Argument, supporting argument. Argument, supporting examples. ठीक है? Another important aspect that while writing, you should ensure that the content is relevant. Anything that you write as irrelevant, एग्जामिनर का मूड ऑफ कर। कंटेंट रिलेवेंस को हमेशा इंश्योर करना है, कोटेशन लिखते वक्त भी, डेटा लिखते वक्त भी, आर्गुमेंट लिखते वक्त। कंटेंट रिलेवेंट नहीं लिखा, यू विल लूज ए ग्रेट लॉट ऑफ मार्क्स, आई एम टेलिंग। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पढ़ा था हमने, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन कहां से आएगा? कंटिन्यूटी से। आप बताते हैं कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करेंगे। सो I have discussed about dimension, macro dimensions. Let me list them D1, D2, D3. I have also discussed about micro dimensions. Let me name them D1, D2, D1, D2, D1, D2, D3, D4. I hope you understand. एक मैक्रो डायमेंशन है और उसी को डिफरेंट तरीके से कहा गया है, मतलब उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। एक मैक्रो डायमेंशन है, उसका एक्सप्लेन किया हुआ है। इनको भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल, आर्गुमेंट एग्जांपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब तक आप आर्ग्यू कर रहे हैं। अब कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, इसको देखिए, जब भी आप ट्रांजिशन लेंगे एक मैक्रो आर्गुमेंट से दूसरे मैक्रो आर्गुमेंट में, D1 टू D2 पे, यू शुड यूज कनेक्टिंग पैराग्राफ्स और यू शुड राइट कनेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो पहला वाला ऐसे लिख रहे हैं कि इविल ऑफ ट्रायम्फ वाला, उसमें आप लिख सकते हैं, हैविंग सीन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स इनएक्शन, लेट्स सी that why do men do or why do good men do nothing. Let's see, despite knowing the consequences, the people remain silent. You may write lines like that. Or having seen the consequences, we should also understand that there is a lot that can be achieved if great men takes action. Having seen the consequences of inactions of great men, a good man, we need to see that a lot can be achieved if great men can take action. फिर अगला हेडिंग दे दीजिए अगले मैक्रो आर्गुमेंट का और फिर चालू कर दीजिए ग्रेट मैन ने, गुड मैन ने क्या क्या किया। गुड मैन में गुड ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी, वुमेन भी आएंगी, सब आएगा। आई एम जस्ट मेटाफोरिकली आई एम रेफरिंग गुड मैन। समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन ऐसे करिए, स्टेटमेंट से करिए, कनेक्टिंग पैराग्राफ से करिए। And when we have seen the relevance, okay, how it is relevant, it is important that we should take action. Having seen the relevance, it is important that we should take action now. And action may way forward. We should take action now. तो क्या action लेंगे? Way forward.
वे फॉरवर्ड बताइए, ये एक्शन लूंगा। आई होप यू गेट द पॉइंट कि आपको ट्रांजिशन कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है डिफरेंट मैक्रो डायमेंशन कनेक्टिंग पैराग्राफ से। चूंकि 4 या 5 मैक्रो डायमेंशन बनेंगी तो प्रोबेबली यू विल बी नीडिंग 3 लाइन्स के 4 पैराग्राफ, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स, and you may very beautifully write subheadings for these macro dimensions. Micro dimensions की सबहेडिंग मत बनाना, क्योंकि आप अब बना ही नहीं पाओगे, इतनी सारी पॉइंट हो जाएंगे, फिर आप जीएस आंसर लिखो। अगर आपको सबहेडिंग बनानी है तो मैक्रो डायमेंशंस की 4 या 5 सबहेडिंग अच्छी लगती हैं, ये 10-12 सबहेडिंग अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो इनोवेटिव सबहेडिंग से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट कि D1 से D2 में कैसे जाना है, D2 से D3 में कैसे जाना है, कनेक्टिंग पैराग्राफ। इसमें कैसे जाना है, इसमें जाने के बहुत तरीके। अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, इफ D3 इज योर वे फॉरवर्ड, इफ D3 इज योर वे फॉरवर्ड, और आप बता सकते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं, इंडिविजुअली वी कैन डू दिस, individually we can do this, at family level we can do this, societal level we can do this, standalone paragraph, nationally we can do this, globally we can do this, internationally we can do this. So individually, locally, globally, this provide the context. और अगर आप कोई फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, किसी का फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां लिख सकते हैं फर्स्टली दिस, सेकेंडली दिस, थर्डली दिस। तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली अपने आप में इंडेक्स क्रिएट कर रहा है आपके मैक्रो आर्गुमेंट के नीचे, और अपने आप में वो कंटिन्यूटी बिल्ड कर। ठीक है, लेकिन फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली वही काम करेगा जब आप एक टाइप की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आप कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चीज के, तो फर्स्टली दिस थिंग इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, सेकेंडली दिस थिंग इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, थर्डली दिस थिंग इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। तो अपने आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करते हैं, कंटिन्यूटी अपने आप बनती है। सजेशन कर दे रहे हैं, इंडिविजुअली वी शुड डू दिस, एट फैमिली लेवल वी शुड डू दिस, एट नेशनल लेवल वी शुड डू दिस, एट नेशनल लेवल गवर्नमेंट शुड कम अप विद दिस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड डू दिस। तो वो जो पहला पहला पॉइंट है वो कनेक्टिविटी बिल्ड करता है, आपको हर बार लिखने की जरूरत। और क्या तरीका हो सकता है, सिंपली यूज फर्दर, मोर ओवर, एडिशनली, मूविंग ऑन, फर्दर, फर्दर, मोर ओवर, मूविंग ऑन टू, नाउ लेट अस डू दिस, इस तरह की चीज। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपको समझ में आ रही है कैसे मेंटेन रखनी है। मैक्रो मैक्रो डायमेंशंस में आप आर्गुमेंट स्टेटमेंट दे दीजिए कि 2-3 लाइन का कनेक्टिंग पैराग्राफ दे दीजिए, और यहाँ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली यूज कर लीजिए। अगर फैक्टर लिख रहे हैं किसी चीज के, सजेशन लिख रहे हैं लोकली, रीजनली, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। और अगर आप नॉर्मली आर्गुमेंट्स दे रहे हैं तो फर्दर, मोर ओवर, हाउएवर यूज कर लीजिए। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। कंटिन्यूटी का आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके लिए कंटिन्यूटी मेंटेन रखना काफी आसान है। ऑब्जेक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो व्हाटएवर आपकी पॉलिटिकल लीनिंग्स किसी की तरफ हो, इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स एट नो कॉस्ट। पॉलिटिकल लीनिंग्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये कुछ भी होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस, एवरीथिंग शुड बी सब्सटेंशिएटेड। आप जो चाय की दुकान पे बातें होती हैं उनको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं, आप डीएम बनेंगे, आप एसपी बनेंगे, आप थिंकिंग इंडिविजुअल। तो वट एवर यू शुड से ऑब्जेक्टिवली। किसी चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मींस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स आर एग्जांपल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, व्हाटएवर। सो यू शुड बी ऑब्जेक्टिव इन योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। योर राइटिंग स्टाइल शुड बी परसुएसिव। परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब क्या है? परसुएसिव का मतलब ये है कि जब आप ऐसे लिखें, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम आपके साथ साथ चलो, आपको एग्जामिनर की उंगली पकड़ के अपने ऐसे में चलाना है। कैसे चलाओगे? आप ऐसे यूज करोगे, लेट अस सी दिस, हैविंग सीन दिस, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब लेटस वाली फीलिंग आती है, इस तरह की फीलिंग आती है, तो अटैचमेंट फील होता है। अगर थर्ड पर्सन से बहुत दूरी से लिखेंगे तो वो मजा नहीं आता है। तो एग्जामिनर को चलाइए अपने साथ साथ, अपने स्टोरी को एक्सप्लेन करने। ठीक है, so you need to be creative in your style of writing. क्रिएटिविटी आप जनरेट कर सकते हैं सब हेडिंग्स, मैक्रो हेडिंग्स की सब हेडिंग्स से। अच्छे अच्छे हेडिंग्स आप पहले से सोच के रखिए, 2 ऐसे जाएंगे, आप 15-20 बहुत कैची सब हेडिंग सोच के रख लीजिए, आपको यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। वे फॉरवर्ड लिखने का कोई तरीका आप सोच लीजिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, और वो आप हर जगह वही लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आई थिंक आप काफी समझदार है कि यू कैन कम अप विद 15 से 20 ऐसे सब हेडिंग्स जो आपको यूज हो जाएंगी। करनी तो आपको 5-5 चाहिए दोनों से।
सेम हैंडराइटिंग यूज मत करना, दैट इज राइटिंग स्टाइल। हैंड राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका ऐसे पढ़ा जाए तो लगे कि खरोष्टी लिपि में लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या क्या समझ में क्या क्या लिखा हुआ है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग। बहुत टाइम होता है लिखने के लिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप ये ऐसे लिख रहे हैं, आपका आपका कॉपी इस तरह से है, तो अगर आप मार्जिन छोड़ रहे हैं, अगर आप पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ मार्जिन छोड़ रहे हैं, तो इक्वल मार्जिन छोड़िए। ये है पेपर पैटर्न। ये दो लाइन है जो रहती हैं, अगर आप मार्जिन छोड़ रहे हैं तो इक्वल इक्वल छोड़िए, और फिर दूसरा पैराग्राफ चालू करें तो यहीं से करें, इसी के सीधे। अब देखिए कितना नीट लगता है ये। कुछ लोग होते हैं क्या करेंगे, ये या फिर ये टेढ़ा पढ़ते हैं कॉपी, तो ये गलत है। प्रेजेंटेशन डज मेक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर एस। देख के अच्छा लगना चाहिए, नीट लगना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बहुत मैटर करेंगी। कटम पिटम नहीं होना चाहिए, ये कट रहे हैं जगह जगह, काट काट के लिख रहे हैं, काट काट के लिख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप पहले जो 15 मिनट 20 मिनट प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में यू शुड बी क्लियर कि आपको क्या लिखना। कंक्लूजन, कंक्लूजन अराउंड 1 पेज में होना चाहिए, 1.5 पेज, सेम 130 to 150 वर्ड्स। एंड वे फॉरवर्ड इज नॉट कंक्लूजन, ये हमेशा याद रखें। कुछ लोग वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन समझ देते हैं। नो, वे फॉरवर्ड इज नॉट कंक्लूजन। कंक्लूजन सिंपली इज ओवरऑल समराइजेशन एंड रीइंफोर्सिंग ऑफ सेंट्रल आइडिया। आपने जो भी कुछ लिखा है उसको समराइज करने का ट्राई करिए, एंड यू समराइज इट इन अ मैनर दैट आपका पता चले आपकी राइटिंग स्टाइल से कि आप कंक्लूड करने वाले। कुछ लोग सबहेडिंग बना देते हैं ऐसे, कंक्लूजन, सबहेडिंग कंक्लूजन की। ये बहुत गलत तरीका है कंक्लूजन लिखने का। आपकी राइटिंग स्टाइल से पता पड़ना चाहिए कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विजन। आपको विजन दिखाना है, आपको आगे क्या होने वाला है वो प्रोजेक्ट करना है। एक ऐसे का जो फ्लो होता है वो ऐसे होता है, इंट्रोडक्शन में यू स्टार्ट विद वेरी वाइड, and then at conclusion you talk about very briefly in introduction body, and then conclusion you open it up toward the new possibilities. ऐसे ऐसे बाइफरकेट होता है जब कंक्लूजन में जाता है। You talk about the vision. If I give you a topic, the relevance of Gandhi ji today, अगर यही ऐसे टॉपिक है तो इस ऐसे टॉपिक में आप यू विल टॉकिंग अबाउट गांधी, गांधी एंड टीचिंग्स, गांधी एंड टीचिंग का ये रिलेवेंस है, ये रिलेवेंस है, ये रिलेवेंस। तो जब रिलेवेंस सब कुछ बता चुके होंगे तो कंक्लूजन में विजन प्रोजेक्ट करिए कि अगर आप गांधी जी को फॉलो करें, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, तो हम राम राज्य अचीव कर सकते हैं। इन द टॉप गिव दिस कीवर्ड राम राज्य। या फिर अगर आपने इंट्रोडक्शन में कोई सिनेरियो जनरेट कर रहा है, जैसे आपने लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन था ना कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू प्लेनेट इज दैट समबडी एल्स विल सेव इट। अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सिनेरियो, फिक्टिशियस सिनेरियो आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट लेट्स से दिस इज 2080, in the Jaipur Shahar there is no water, people are taking pills in the in the place of khana food, in the place of food people are taking pills, ऐसे करके आप 50 से सिनेरियो जनरेट कर रहे हैं। then to highlight the severity of the climate change or environmental impact, in the conclusion you can just just उसके पहले आपने वे फॉरवर्ड बताया होगा ये करना है, तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये सिनेरियो माइट चेंज टू दिस। तो वो बहुत अच्छा कंटिन्यूटी प्ले करता है। अगर आपने कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर अपना लिया हुआ है, सीता गीता जो भी आपने ली हुई हैं, अगर वुमेन के ऊपर लिख रहे हैं, उन सीता गीता का चेंज सर्कमस्टांसेस या चेंज विजन आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि अगर हम इन सबको करें तो परहैप्स दिस थिंग विल नॉट हैपन टू सीता, सीता को ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत अच्छा कंटिन्यूटी बिल्ड करता है आपके हिस्से का, सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है। तो यू मे यूज दैट टेक्निक टू हाईलाइट द विजन, क्योंकि विजन बेसिकली इज अल्टरनेटिव सिनेरियो। ठीक है, जो 2080 का मैं एग्जांपल दिया, 2080 का जो एग्जांपल दिया, अल्टरनेट सिनेरियो क्या होगा कंक्लूजन में वो आप लिख सकते हैं। सीता या गीता के लिए चीजें कैसे चेंज होंगी वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है कि कंक्लूजन में विजन कैसे दिखाना है। या तो स्टैंड अलोन विजन दिखा दीजिए या इंट्रोडक्शन से लिंक करके दिखा दीजिए। दोनों जगह सेम चीज मत करना, सेक्शन ए में भी और सेक्शन में भी। दोनों जगह लिंक कर करके दिखा रहे हैं तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। एक करना, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट कंक्लूजन, इट इज नॉट वे फॉरवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 3 लाइन में कंक्लूड कर देते हैं लोग,
मैं देखता बिफोर लिखेंगे और 3 लाइन लिखेंगे बस, ठीक है, दे विल लूज द मार्क्स देयर, इसी के बाद तो मार्क्स मिलता है. So I will just quickly go through the common mistakes that are committed by aspirants, and the only objective is you should not commit them. ठीक है, दूसरों की मिस्टेक से सीखिए. Now, irrelevant quotes, very frequent mistake, I should say. Very frequent mistakes. For example, the same topic is peace cannot be kept by force, but can be achieved by mutual understanding. The aspirant has started with peace is a journey of 1,000 miles, and it must be taken one step at a time. कोई रिलेवेंस नहीं है. The only thing related is peace. There is peace. तो इन्होंने याद किया होगा पीस पे क्या क्या है कोटेशन, बस पीस देखा तो पीस उल्टी कर दी. मुझे तो पीस पे कोटेशन याद है, मैं यूज कैसे नहीं करूंगा उसे. इट्स अ शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग योर एसे डल. अरे भाई बात ही अलग है. इट इज टॉकिंग अबाउट कि पीस इज जर्नी ऑफ 1,000 टाइम मस्ट बी टेकन वन स्टेप एट टाइम, कि धीरे धीरे पीस को हमको अचीव करना है. और ये बात कर रहा है मीन्स की. देयर आर टू मीन्स, वन इज फोर्स, अदर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कौन सा मीन्स बेहतर है? देयर इज नो रिलेशन. तो इस तरह का कोटेशन आपको नहीं देना है, रिलेवेंट. सेकंड इज डल एंड टू जनरल इंट्रोडक्शन. ठीक है, द सेम टॉपिक पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, कैन बी अचीव्ड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. लेट मी रीड इट फॉर यू. Man is a social animal, a long known fact. Its interest in its nature to live. It is an interest in its nature to live with mutual understanding and cooperation, not only with each other but with ecosystem too. Now it is too dull. अभी तक टॉपिक पे आई भी नहीं है. Very general opening statement. Man is a social animal, long known fact. Interest in his interest to live with the mutual understanding, cooperation. अरे भाई बात कर रहा है दो मीन्स की. सीधा बताइए कि फोर्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कौन सा मीन्स बेहतर है और क्यों. जस्ट गेट टू द पॉइंट. तो यू शुड नॉट स्टार्ट इंट्रोडक्शन लाइक दिस. यू आर मेकिंग द एग्जामिनर वेट फॉर एवर. भैया स्टार्ट कर लो अपना. दिस इज अ मिस्टेक यू शुड नॉट डू. स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद वेरी फैसिनेटिंग लाइन्स. बहुत अच्छे से लिखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेम एसे का कोटेशन और डिबेट के साथ. ये है फॉरगेटिंग द थीम एंड स्कोप ऑफ द एसे. ये लिखा हुआ है एसे का टॉपिक है राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, नाउ लेट मी रीड इट फॉर यू. इट सेज व्हाट इज राइट इटसेल्फ. सम आर्ग्यू इट इज लिबर्टी, नेगेटिव सेंस, एज is avoidance of duty is avoidance of any obstruction claims or entitlements which other people or for example also arises as to right can be given to. Is it to be given to only humans? क्या humans के पास right है? Or should be given to animals? In human, should it be given to all equally, or women should be have special rights? But who is human? Does fetus have rights? So as you can see, the proportion is disproportionate. I understand the two words in the essay that rights and responsibilities go hand in hand. That rights and responsibilities go hand in hand. These two words needs to be explained. I understand that. They should be explained, but you need to take care of the weightage. कितनी आपको perhaps you should take only this one paragraph to explain what do you understand by rights and what do you understand by responsibility. ये पूरा एक पेज लिखा हुआ है राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी पे, और इसमें भी डिबेट जनरेट कर दिया गया है कि राइट्स किस किस को देने हैं. क्वेश्चन में है ही नहीं, ऐसे का टॉपिक में है ही नहीं राइट्स किस को देने हैं. ऐसे का टॉपिक सिंपल है, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. यू शुड नॉट फॉरगेट द थीम ऑफ द एसे एंड स्कोप ऑफ द एसे जो आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं. तो ये आपको जब एसे प्लान करें तभी आप डिसाइड कर लें कि कितना लेंथ आप अपने एसेस को दें, किस किस पार्ट किस किस मैक्रो डायमेंशन को कितना स्पेस देंगे. एक्सटेंड करना है तो इतने में बस डिफाइन कर दीजिए. नो नीड टू गो इनटू दिस डिबेट. एसे का डिमांड नहीं है वो. देन I believe you will not be committing this type of mistake. ऐसे भी किसी ने ऐसे लिखे हुए थे एक एस्पिरेंट ने. ठीक है, तो ऐसे नहीं अटेम्प्ट करने हैं. ऐसे ये ऐसे है ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड ओवरव्यू ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. तो ये सब फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब नहीं लिखना. ठीक है, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ ऐसे. सेम डीपीएसपी अपलिफ्टमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन, ये डैश डैश कर करके ये सब नहीं करना है. आप जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. सेम इज
This is the essay on great power with great respect. So direct people's action towards a dignified cause. The Max Weber calls such power as charismatic authority. Optional का यूज नहीं करना, ऑप्शनल थिंकर्स यूज नहीं करने. You should make your essay as general as possible. जो अखबार में कॉमन पढ़ी चुकी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन पर ऑप्शनल का टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर नहीं करना है. यू विल ग्रेटली सफर, बहुत सफर करेंगे आपके मार्क्स. टेक्निकल ऐसे नहीं लिखना, जनरल ऐसे लिखना. ठीक है, आई होप यू गेट दिस. देन राइटिंग एनेक्डोट्स ऑन कीवर्ड्स रादर देन ऑन एसे थीम. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे टॉपिक से पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. नाउ many of the aspirants write essay or even anecdote on only poverty, but the essay topic is different. ऐसे टॉपिक से कि कहीं भी एक जगह गरीबी होगी तो प्रॉस्पेरिटी को थ्रेटन करेगी बाकी जगह. You may talk about the Naxalism, you may talk about the Northeast insurgency, you may talk about the Middle East, any problem जहाँ पे poverty conflicts ज्यादा है और बाकी जगहों कैसे थ्रेटन. You may talk about all of it, but anecdote should be linkages between these two aspects. खाली poverty बनी लिखना है कि फलान person is suffering from so many multidimensional poverty. Very dull essay, very dull introduction. क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पहला essay था attitude determines altitude. तो एनेक्डोट कैसा था, उसमें circumstances बताए गए, एटीट्यूड बताया गया, एटीट्यूड बताया गया. एक ही एनेक्डोट में तीनों कीवर्ड आ गए, तीनों इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं सेट ऑफ. सिमिलरली आपके एनेक्डोट में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर, थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, दोनों बातें आनी चाहिए कि कहां पे पॉवर्टी है और कहां पे थ्रेट करना है, एल्सवेयर कैसे. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. ऐसे पॉवर्टी पर नहीं लिखना है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हाउ टू सॉल्व पॉवर्टी, ये ऐसे नहीं लिखना है. मैक्रो डायमेंशंस इसके कॉन्टेक्स्ट में बनानी है, इस पूरे थीम के कॉन्टेक्स्ट में बनानी है. ठीक है, लैकिंग कंटिन्यूटी. ठीक है, अनदर कॉमन मिस्टेक्स. तो ये आई होप जब मैंने बताया है कि मैक्रो से मैक्रो कैसे जाएंगे, डिफरेंट माइक्रो से मैक्रो कैसे जाएंगे, अब आप इस पर टेक केयर करेंगे. आई शुड सी कंटिन्यूटी नाउ. नॉट राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट इन द एसे व्हिच पोजेस क्वेश्चंस और डिबेटिंग. ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जहाँ का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप क्लेवरली हम बच जाए, आंसर ना करें, आपको नंबर नहीं मिलेगा. देयर इज रीजन वो क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा हुआ है आपके ऐसे टॉपिक पे. देयर इज रीजन क्वेश्चन डिबेट जो ऐसे टॉपिक है दैट इज डिबेटेबल. देयर इज रीजन, यू मस्ट आंसर द डिबेट, यू मस्ट आंसर द ऐसे. लैकिंग प्रिसाइसनेस स्पेशल एनेक्डोट. कुछ लोग एनेक्डोट कहानी लिखने के इतने शौकीन होते हैं कि 2-2 3-3 पेज तक कहानी लिखते रहते हैं. दिस स्पेशली हैपेंस जब कोई पहली बार एनेक्डोट अटेम्प्ट कर रहा होता है, पता नहीं पड़ता कि कहाँ पे लिखना है, कितना लिखना है. तो ये यूपीएससी डायरेक्टर्स में था, प्रिसाइसनेस इज इंपॉर्टेंट. योर एनेक्डोट नीड्स टू बी प्रिसाइज. मोस्टली इट शुड नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड 1 पेज, क्योंकि जो बका आधा पेज है वो आप इसको फ्री स्टेटमेंट यूज करें. आपकी कहानी आपके पहले पेज पे हो जानी चाहिए. नॉट एक्सप्लेनिंग द कोट और एसे टॉपिक, पिक्यूलर कीवर्ड्स. कोटेशन अगर आप यूज कर रहे हैं अपना, कोई भी फर्जी नहीं, मतलब कोई भी रिलेवेंट कोड, यू नीड टू एक्सप्लेन इट एंड देन लिंक इट टू द एसे टॉपिक. और आप एक्सप्लेनेशन को ऐसे के टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में समझा सकते. एंड यू आल्सो नीड टू डिफाइन द पिक्यूलर कीवर्ड्स. जैसे वो शिप्स और वाटर वाला ऐसे था, यू नीड टू डिफाइन शिप्स एंड वाटर, क्योंकि आप उसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं. एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप कैसे इंटरप्रिटेशंस देने वाले. ठीक है, तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाला जो ऐसे टॉपिक था, उसमें कल्चर और सिविलाइजेशन वाले पिक्यूलर टॉपिक आपको बताने हैं. वहीं ऑन द अदर हैंड जो टॉपिक था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी द पैनेसिया फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. अचीवमेंट ऑफ न्यू वुमेन इज मिथ, तो यहाँ न्यू वुमेन बताना है. तो इट इज योर जजमेंट कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे नहीं. तो कीवर्ड्स मस्ट बी एक्सप्लेन, योर कोटेशन मस्ट बी एक्सप्लेन. ये जनरल रूल है, नहीं करोगे तो गड़बड़ है. सो दैट इज इट फ्रॉम द माई साइड. आई थिंक अभी आपको काफी चीजें पता होंगी. इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मेंटेन रखने हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है. बट आई विल से कि कल भी मैंने बोला था कि ये आपको नॉलेज मिली है. मच ऑफ इट यू वुड हैव ऑलरेडी, आपको पता होगा कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है ये दिक्कत होगी शायद करने. तो ये आपको विजडम में ट्रांसलेट करनी है बाय प्रैक्टिस. यू मस्ट प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग एंड सी वेदर और नॉट आप इन जो अभी बताया गया है इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके आंसर्स में, बिकॉज दैट इज ऑल दैट विल मैटर आपका पेपर. ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं.
दूसरी बात यह है कि आई वाज थिंकिंग कि आप में से जो कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हों वो थोड़ा कुछ कोलेब्रेशन कर लें, स्पेशली इन द टॉपिक्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी या जो भी कॉमन कॉमन सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हों तो वो करें। तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा जिसमें आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे एंड विल सी कि अगर कुछ पीयर ग्रुप एक्टिविटी हम करा सकें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल्स की, और आई कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट जो टॉपर रहे हो अपने ऑप्शनल में, and then perhaps they can guide you on your respective options. So that I will see. Another important aspect is कि कुछ students कह रहे थे कि उनको ethics में थोड़ा और करना है, तो after 24 probably I will come up with certain things जो आपको ethics में help करेगा। अभी तो MMP सेशन फोकस करते हैं, 24 के बाद I will do certain things on ethics। ठीक है, बाकी जो भी है आप डाउट पूछ सकते हैं अपने चैट्स में। give me a minute। ठीक है, thank you so much everyone। I wish you all the best।